করছি পুଣି থরে আউ গোটে নୂଆ ভিডিওକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାବାଜୀ ନାଟକର ଲେଖକ ଜଗମୋହନ ଲାଲା କଟ୍ ପେପର୍ 9ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 8 ମାର୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାନେ ଲେନ୍ଦି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 4 ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ପେଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେ ପକାଇବ। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, এই ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗାଠାରେ 1838 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବିହାରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓ ପରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭରେ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଟକଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଏବଂ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ନିଜ କୁଳଦେବତା ରାଧାକାନ୍ତ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଦେବତା ଅନୁସାରେ ହେଲା, ତାଙ୍କ କୁଳଦେବତା ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କ'ଣ ସବୁ ନାଟକ ମାନେ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଥିରେ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାବାଜୀ ଏବଂ ସତୀ ନାଟକ ଦୁଇଟି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1877, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଜୀ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ 1886 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 4ଟି ନାଟକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାବାଜୀ, ସତୀ, ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ବିବାହ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରୀତି ନାଟକ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୁଦ୍ଧ ବିବାହ ସାମାଜିକ ନାଟକଟେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗମୋହନ ଲାଲା ଥିଲେ ସଂସାରବାଦୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ସଂସାରିତ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରାବୟନ ନାଟକ ବାବାଜୀରେ ଭଣ୍ଡ ଏବଂ ମଠାଧୀଶମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୂତ, ଡାହାଣୀ, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଏହି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନାଟକ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ନାଟକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି 1887 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ ନାଟକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଯେଉଁଟାକି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଅଙ୍କ ଓ 11ଟି ଗର୍ଭାଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟାଙ୍କ ସତୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାବାଜୀ ନାଟକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତ ରାଜା ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜୁଡ଼ା ଜୁଲମରୁ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ଚମ୍ପତି ରାୟ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏହାର ଉପଯୋଗ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଂରେଜମାନେ ହେଲା। ଦେଖ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ 1876 ନାମକ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ଲାଲାଜୀଙ୍କର ବା ବାବାଜୀଙ୍କର ହେଲା, ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କୃତି। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୃତି 1876 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟତମ କୃତି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୟନବୀଙ୍କ ଇତିହାସର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ 1803ରୁ 1928 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କେଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 1803ରୁ 1828ର ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତର। ରାଧାକାନ୍ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଂରେଜ କବି ଥମାସ ତ ପର୍ନେଲଙ୍କ
ଦି ହର୍ମିଟ୍ नामक यही दीर्घ कविता अनुसरण में 9टी छांद विशिष्ट ओडिया काव्य भ्रमभंजन तांकर गोटे काव्य ओडिया काव्य भ्रमभंजन अच्छी बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आसो है 9टी छांद विशिष्ट ओडिया काव्य भ्रमभंजन मन रखिए 1871 मसीह जन्म नहीं भ्रमभंजन तांकर गोटे काव्य मन रखिए से माने आम कह बाबाजी जगमोहन लालांकर माने जगमोहन लाला जड़े नाट्यकार नुहति से जड़े माने काव्यक है जड़े जड़े विशिष्ट काव्यकार आम कहीपर जगमोहन लाला को नेक्स्ट देखो जन्म हाँ जन्म नहीं तो से केवल जड़े सफल नाट्यकार नथिले से एकाधारे काव्यकार गीतिकार संगीतकार और नाट्य निर्देशक मंच अभिनेता और समाज संस्कार थिले किए जगमोहन लाला तो यही चिरस्मरणीय साहित्य साधकों देहावसान होता के 1923 सॉरी 13 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर 13 तारीख देहावसान होता एति मन रखु बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु आम जीवन विषय में आलोचना करें देखो ए विषय वस्तु को आसवा आम देखो आप वीडियो को जमा भी स्किप करूँ मुझे बारंबार कहूँ जो मैंने वीडियो को स्किप कर निहाती भाव में जिते एग्जाम सेक्शन जिते मैंने बसी थे एग्जाम जब क्वेश्चन आसते तुम मन पकड़ से तुम मैंने चिंता कर क्वेश्चन टी पढ़ी थे आमको बहुत हेल्पफुल होता तो से चिंता बर्तमान एवेटू मैंने पढ़ु आ जमा भी से भाया आम मानने सेमती आपंकर कौन प्रोब्लेमटा आप सामने न होगा दरकार है तो देख तो बाबाजी नाटक एक शिक्षामूलक नाटक यार चरित्र माने समाज विभिन्न वर्गर पूजारी ख्रीष्टियान और बंगाली व्यवसायी और विशेषतः बाबाजी बा सन्यासी तो प्रतिनिधित्व करती यही चरित्र मान मनस्तात्विक संघर्ष नाटकटी मान पुष्ट नुहे तो आधुनिक नाट्यकार दिगरू विचार कले हुए तो एभली चरित्र चित्रण दुर्बल मने होई पारे किंतु बाबाजी नाटक रचनार समय विचार कले चरित्र चित्रण दुर्बल नुहे यार चरित्र मानक समाज रे एक पारंपरिक भूमिका थिला चरित्र मानक मध्य निहित संपर्क सांघात माध्यम रे नाट्यकार तांकर वार्ता बा नीति शिक्षा प्रदान करछंती मद्यपान समर्थन करथबा और विरोध करथबा चरित्र समावेश नाट्यकार निद्राद्रव्य एवं विरोध मनोभाव प्रकट करुछि नाटकटी अपातः समाजर धर्मर गुरुत्व उपर आधारित हेले जुक्ति व्यतिरेक धर्म गुरुत्वहीन बोली दर्शा जाए जो नाटक में बहुत गुड़े चरित्र आम देखिपार जोटा कि चरित्र पूजारी ख्रीष्टान थे बंगाली व्यवसाय विशेषतः बाबाजी और सन्यासी ये प्रतिनिधि करते ये जो नाटक ये चरित्र मान मनस्तात्विक संघर्ष कौन नाटकटी पृष्ठभूमि आम देखा पाऊँ आगे देखो बहुत ये नाटकर माने बहुत गुड़े आम शिखा शिक्षामूलक नाटक बोले आम जो बाबाजी नाटक आम कहीपर तो देखो नाटकर मुख्य चरित्र बाबाजी यथार्थ आधुनिक चिंताधारा को प्रतीक छलना और कुसंस्कार विरोध में से स्वर उत्तोलन कर तो परवर्ती देखा प्रथम अंक आउ ये जो बाबाजी नाटक 4टी अंक आम पढ़ा बुझीपारे तो प्रथम अंक देखो कौन अच्छे प्रथम अंक बासु सुबड़ पट्टनायक गृहर दृश्य आम देखू ये जो नाटक प्रथम अंक क्या बासु सुबड़ पट्टनायक को आम गृह दृश्य आम देखू तो बाबू विलास प्रिय आधुनिक किंतु परंपरा प्रति आसक्ति बाबाजी गृह में उपस्थित होगा देखि से बाबाजी को यथाविधि आतिथ्य प्रदान करने को चाहती आमोद प्रमोदर समय बिताइबा जीवनर मूल कथा तेणु मद्य प्रति दुर्बलता मध्य नथिले शनिवार संध्या निरस्व और सुख बोली से मन करती बाबाजी सुबल पट्टनायक ठीक अलटा चित्र से विश्वास करती मद्य भली तुच्छ आकर्षण चित्तवृत्ति को मुक्त रखा प्रथम अंकर आरंभ बाबाजी कहते निशा पानी कि कार्य एथिरे मतगति ठीक रहे ना अत्यधिक मद्यपान फल सुबल निद्राबुद्ध हो पड़ती और बाबाजी प्रति कर्तव्य भूली जाते नाटकटीर प्रथम अंकर शेष में आम देखू कौन बिचरा बाबाजी कौन क्षुधार्त हो रही आम प्रथम अंक कौन देखले जो बिचरा बाबाजी को नाटक प्रथम अंक शेष में आम कौन देखू बिचरा बाबाजी क्षुधार्त हो रही तो द्वितीय अंक देखूँ द्वितीय अंक जीवन प्रति कर्तव्य संपर्क सूचना मिले पूजारी ब्राह्मण बाबाजी इत्यादि आलाप माध्यम आम लक्ष्य करूँ अतिथि प्रति किभली व्यवहार करा उचित वास्तव में अतिथि अर्थात बाबाजी प्रति यथार्थ व्यवहार करा जाए नहीं माटी भीतर जीवंत को कुकुड़ाटीए बाहर बाबाजी महिमार फल बोली कहुए ये हास्यास्पद परिस्थिति एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दिए रघु पूजारीर कर्तव्यहीनता और लक्ष्य करी कहे तुम्हें ब्राह्मणटीए कि ब्राह्मणटी कि तो तुच्छा पैता पकई ब्राह्मण ना धर्मकर्म ब्राह्मण
तो कलिकालर ब्राह्मण गुड़िक कौन है तो धर्मकर्म को महत्व मर्यादा को टिके दृष्टि नहीं गाली माड़ खाई बार दुआरे पत्तर पकेले और बार अनीति कले ये आम कौन देखले द्वितीय सर्ग देखले है माने द्वितीय अंक तृतीय अंक कौन देखले अंक तृतीय अंक आम जाना तो तृतीय अंक नाट्यकार दर्शाते जो धर्म नाम किपरि स्वार्थ तथा आमद प्रमोदर व्यवस्था करिअछि तो मठर समवेत चरित्र माने केवल चाकरटी राड़ निज निज स्वार्थ चिंता लिप्त और निज स्वार्थ पर से धर्मर व्याख्या कर केवल बाबाजी ही यथार्थर जड़े धार्मिक व्यक्ति किंतु मुठाए खाद्य मिलूना रामदास कहती एवं कौन आउ भोगराग अच्छी एक कहते रामदास कहते तो पुणी काली ठारू सेरे चाउल उणा होती तो ठाकुर को पेट काट और ओत्या अभ्यागत को किए पचारे गंजा जिते चाह मु दे पारे से तो उद्योग्य नुहे आमको गंजा अफिम मिली कौन मिले अन्न देले केते न देले केते तो वीरर मनोभाव किंतु ठीक विपरीत बाबाजी दृष्टि समस्त भितर से ही एकमात्र मनीष वीर भाषा कौन कहूच महाराजा तो पेट पाई एठारे पड़ी आमे दुखी गृही लोक पिला बालकों चिंतार दिन जाए से व्यक्तिंकर तो से तो चिंता ना तो पलारे खाई मेलारे और गड़ कौन हाँ गड़ गौंट और स्वार्थ धर्म नाम अनाचार और प्रतिवादर प्रतीक होती बाबाजी चित्र बा चरित्र तो मठर विधर मनीष मान विषय से कहते गोटे हाथ करुवा भल कम अन्य हाथटी जाना कथा नुहे झोलाटिया धरी परवर्ती देखो झोलाटिया धरी इयाड़े सियाड़े बुलवा यही नीतिर विरोध आचरण करे तो यह खाली लोक देखाणिया कथा एवं मनर जदि धर्म भाव ना ता माली गड़े आसब कौटी मनर मूल्य ए जगत तो ये देखूँ आम तृतीय माने कौन पर्याय पढ़ले तो नाटक चतुर्थ शेष माने शेष आम चतुर्थ शेष कौन देखा नाटक चतुर्थ शेष दृश्य आम बाबाजी नदीकूलस्थ अस्थायी बासस्थान परिचय आम पाई यही प्राकृतिक सौंदर्य और सहज सरल जीवन यात्रार प्रतीक स्वार्थ विलास व्यसन संपूर्ण विपरीत वातावरण एठारे प्रकटित बाबाजी चरित्र तथा बाबाजी नाटकर नीति शिक्षा यही अंकर सुस्पष्ट हुए बाबाजी जीवन लक्ष्य समाज कुसंस्कार अंधविश्वास दूर करने तथा साधारण मनुष्य को धर्म नाम चली शोषण मुक्त करने तथा कथित और मिरालु है मिराक्लो अद्भुत घटना मान अनेक समय कुसंस्कार और पाप तथा अंधविश्वास को प्रसारित करे समाज विभिन्न वर्गर चरित्र जेमी ये जो चरित्र जेमी एवं कौन तो राधी ख्रीस्टियान जेम्स बंगाली शिव सुबुझारी प्रभृति बाबाजी सहित कथोपकथन मध्यम आम नाटकटी मूल वार्ता उपलब्ध करूँ तो परवर्ती देखो भूत प्रेत चिरगुणी इत्यादि मनुष्यर अज्ञान सुप्त कल्पना बोले आमर हृदबोध को माने हृदबोध हुए तो धर्म हेतुवाद मध्य संघर्ष आम लक्ष्य करूँ आधुनिक वैज्ञानिक चिंताधारा प्रभावित समाजर अभ्युदय हेतुवाद एठार धर्मर विरोध नुहे बरं धर्म शिक्षा दिए अन्यतर अन्यर ममता को सम्मान करने कथा कुसंस्कार अंधविश्वास साधारण मनुष्य को रक्षा करवा बाबाजी सहनशीलता और उदारता प्रचार करती तो नाटक में 2 थर कुकुड़ा संपर्क उल्लेख कर प्रसंग में बाबाजी असाधारण शक्ति उल्लेख कर जेमी भाषा देख भिडटी आपको लेंदी हो पारे मुझे ये आपको माने पढ़ी पढ़ी नौ कहीं भिड जो मुझे बुझेबी आप बुझे माने स्टोरीटा कौन अच्छी तेणुक मुझे बुझाऊ ना खाली पढ़ी जाऊँ बास मैंने शुणी जातु आप निजे पढ़ले बुझीपारे बारंबार ताको पढ़ले आप बुझीपारे है तेणुक पढ़ी पढ़ी जाऊँ कहीं भिड अधिक लेंदी न हो तो देखो महाराजा आप आज सुबल बाबू बसा को जाइए बाबू आपंकर बड़ सम्मान कले पूजारी दुष्ट और गुणे अटे से आपण को देखो से आपन को तोड़ापी गोटे हाँ गोटे कम करूँ भिड माने लेंदी होते गोटे कम करूँ आप माने यहाँ लिखु माने गोटे नोट्रे आप लिखि रखु लिखिकी आप बारंबार माने पढ़ले आप बुझीपारे आप जानीपारे प्राक्ट सब आप प्राक्ट जो होते एग्जाम लिखिपारे तो ये स्क्रीनशॉट मारत आउ टिके रहा मुझे पढ़ी पढ़ी नेबी आउ अधिक भिड लेंदी हो भिडियो को स्किप करके जाऊँ तो ये देखो ये माने कौन स्क्रीनशॉट मारिक निजे पढ़ु और नोट डाउन कर लिखि दिंतु है आउ टिके रहा या को स्क्रीनशॉट मार दिंतु है आती देख एति
बाबाजी नाटक बहुत इंपोर्टां लंग क्वेश्चन आपको आसो आ जहाँ भी क्वेश्चन आसो लंग क्वेश्चन गोटे मैंने जो प्राक्ट कर जहाँ भी क्वेश्चन आसू देखो बाबाजी चरित्र विषय आलोचना कर ये क्वेश्चन आसो ताहले लिखिपारे आप से मैंने बाबाजी चरित्र कौन अच्छी आप आराम से लिखिपारे बुझीपारे। तो एति था आप स्क्रीनशॉट मारे सरला। तो देखो आज लंग क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट था जो एग्जाम अच्छे आग को निहाती भाव में नोट प्रिपेरेसन करूँ नोट को माने नोट बनातु गोटे नोट करके आपने कोड पेपर 8, 9, 10 प्रत्येक क्लास करें देखीदे। तो आज एतिक था आशा कर वीडियो भल लगे जब वीडियो भल लगे वीडियो समस्त लाइक करेंगे चैनल को नसले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कर कहे कौन बुझी होनी मत कमेंट करके निहाती भाव कहे। मुझे रोचे धन्यवाद।